Today we are going to study about the classification of engineering materials. Engineering materials is a branch of metallurgy which deals with the classification, properties and applications of materials used in industries. Every product given by industry, every machine in industry made of metals, parts made from metals, composites, polymers, etc. in our homes makes human life more comfortable and safe. Solid materials used in engineering field to cater and serve variety of applications are called as engineering materials. Today's engineering world deals with more alloys of metals than original single metals. Knowledge of metals and alloys is undoubtedly essential one for an engineer. To represent importance and utility and materials, an example of typical family car is shown in the figure given below, which makes us which makes use of almost all types of metals as well as non-metals. ठीक है, so this is the detailed description about the engineering materials. तो इसको मैंने simplified way में बता दिया था आप लोगों के ऐसे metals जो अभी materials इसको बोलेंगे any substance which have mass and occupies some space is called as material. ये तो हो गया material के बारे में. Now what is engineering material? Engineering materials are those materials which are being used in the field of engineering. Now what is engineering? A technique which reduces the human effort. इसको बोलेंगे engineering, a technique by which we can reduce the human effort and eases the task. हमारा जो भी task है, जो भी operation है, उसको क्या करेंगे? आसान बनाएंगे. उसको हम लोग बोलेंगे engineering. So basically engineering materials are classified into 4 types which we had studied in the previous lectures also. So the first type of engineering material is metals, second type is polymers or plastics, third type is ceramics and glasses and fourth type is composites. अब यहाँ पे देखो सबसे पहले और डिटेल में हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. So again metals are divided into three different types, but there are only 2 major types, ferrous and non-ferrous. अमारफस के ऊपर जो है हमको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है या उसको डिटेल में नहीं पढ़ना है. हमको फोकस जो करना है मेटल्स के अंदर, वी हैव टू फोकस ओनली ऑन 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज फेरस एंड सेकंड वन इज नॉन फेरस. सो द फेरस आर दोज मेटल्स विच कंसिस्ट आयरन इन लार्जर प्रोपोर्शन और लार्जर कंपोजिशन. ऐसे आयरन जिसके अंदर ऐसे मेटल्स जिसके अंदर आयरन का जो प्रोपोर्शन रहेगा वो लार्जर क्वांटिटी में रहेगा या डोमिनेंट रहेगा, ऐसे मेटल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? फेरस मेटल्स. फॉर एग्जांपल स्टील, स्टेनलेस स्टील, टूल स्टील, डाई स्टील, कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन. ठीक है, हाई स्पीड स्टील्स. So these are the few examples of ferrous metals. Now come to the second type of the metals, that is non-ferrous. The metals which consist iron in very less quantity. Okay, so the iron present in the metal in very lesser quantity are called as ferrous metals. The metals in which iron possesses or iron is present in a very little quantity, very lesser quantity, or it may not be present in the metal. हो सकता है कि वो प्रेजेंट ही ना रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो प्रेजेंट है तो उसकी क्वांटिटी जो रहेगी बहुत नेग्लिजिबल रहेगी, बहुत छोटी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट रहेगा. ऐसे मेटल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन फेरस मेटल्स बोलेंगे. सो what are the different examples of non ferrous metals? Aluminium, copper, titanium, tungsten and other so on. अभी वो सिल्वर भी रहेगा, गोल्ड भी रहेगा, ठीक है, प्लैटिनम भी रहेगा. देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन फेरस मेटल्स. सो कम टू द सेकंड टाइप ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, दैट इज पॉलीमर्स, व्हिच इज आल्सो बीन नोन एज प्लास्टिक्स. सो द प्लास्टिक्स आर अगेन classified into 3 different categories: thermoplastics, thermosetting plastics and elastomers. Thermoplastics such as acrylics, ABS, nylon, polyethylene, PVC and others. Thermosetting plastics such as epoxies,
phenolics, polyamides, and others. Elastomers such as rubbers, silicones, polyurethanes, and others. Then come to the third type of engineering material, that is ceramics and glasses, oxides, nitrides, carbides, glasses, ceramics, graphite, and diamond. So these are the some examples of the ceramics and glasses. Then come to the last point of the engineering material, that is composites, reinforced plastics, metal matrix, ceramic matrix, and laminates. अगर आप लोगों ने गाड़ी का टायर देखा होगा तो टायर के अंदर जो है अगर उसको कट करके कटा हुआ टायर आप लोगों ने अगर देखा है तो उसके अंदर आपको मेटल की एक मेश नज़र आएगी, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट, ठीक है। मेटल मैट्रिक्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं। रबर रहेगा, रबर के अंदर क्या करेंगे हम लोग, मेटल का एक मेश यूज़ करते हैं ताकि उसको रबर को ज़्यादा स्टेबिलिटी दी जा सके और उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ दी जा सके। अब इस क्लासिफिकेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स एज अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन, फेरस एंड नॉन फेरस, ठीक है। अब अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं वो भी देखना है हमको। Solids have greater interatomic attractions that liquids and gases. However, there are wide variations in the properties of solid materials used for engineering purposes. The properties of the materials depend upon the interatomic bonds. Some bonds also dictate the space between the configuration of atoms in solids. अब यहाँ पे देखो हमको जो नया चीज़ देखनी है वो है कि इंजीनियरिंग मटेरियल में यूज़ होने वाले जो मटेरियल्स है उसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे और अमॉर्फस स्ट्रक्चर किसको बोलेंगे। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अभी हम लोगों ने तो ये तो देख लिया है कि मटेरियल जो है किसको बोल रहे हैं हम लोग, द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड एज मटेरियल। अब ना यहाँ पे जो हमको देखना है वो क्या है, मटेरियल तो देख लिया हमने। अब मटेरियल के अंदर कौन से मटेरियल को हम लोग क्रिस्टलाइन मटेरियल बोलेंगे और कौन से मटेरियल को हम अमॉर्फस बोलेंगे। अब ये डिपेंड करता है उसके आइटम्स के अरेंजमेंट के ऊपर या उसके पार्टिकल्स, उसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसके ऊपर या मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है उसके ऊपर, उसका अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है। और यही अरेंजमेंट को समझने के लिए मैंने आपको जो है माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में बोला था कि किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये जो है यहाँ से शुरुआत हो रही है। उसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो दो अलग अलग टाइप्स का हो सकता है। किस टाइप का हो सकता है, अमॉर्फस टाइप का हो सकता है या फिर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का हो सकता है। अब अमॉर्फस स्ट्रक्चर में क्या होगा, नो डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड नो क्रिस्टल स्ट्रक्चर सच एज ग्लास, प्लास्टिक एंड रबर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में क्या होगा, एटम्स हैव डेफिनाइट अरेंजमेंट इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मेजर मेटल्स एंड अलॉयज। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अमॉर्फस स्ट्रक्चर कौन सा है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कौन सा है। ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर मान लीजिए आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, रैंडमली प्लेस्ड किए हुए हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, अमॉर्फस स्ट्रक्चर बोलेंगे। और अमॉर्फस स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टीज रहेंगी वो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं रहेंगी, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए वहाँ पे ज़्यादा अच्छे प्रॉपर्टीज हमको मिल जाएंगे। जहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, बहुत गैप है दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको बहुत वीक मिलेंगे, अच्छे प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगे, वो उसका वीक पॉइंट ठहरेगा या फिर उसका जो है वहाँ पे ब्रेक भी हो सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है उस पॉइंट से जहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, गैप बहुत बढ़ गया है। और आमतौर पे अमॉर्फस स्ट्रक्चर को अवॉइड किया जाता है और ये मेटल्स में तो बिल्कुल पाए ही नहीं जाते हैं, मतलब बहुत कम पाए जाते हैं। अमॉर्फस स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल कम पाए जाते हैं, नहीं के बराबर पाए जाते हैं। आमतौर पे ये जो अमॉर्फस स्ट्रक्चर है आपको कहाँ पे देखने मिलता है, किन मटेरियल्स में देखने को मिलता है, ग्लासेस में देखने को मिल सकता है, प्लास्टिक्स में देखने को मिल सकता है और रबर्स में देखने को मिल सकता है। जबकि जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। कैसा है वो, ज़्यादा प्रेफरेबल है या फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज रहेंगे वो यूनिफॉर्म रहेंगे थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक ब्रिक है, ब्रिक समझ में आती है ना, ईंट।
अगर उस ईंट को मैं किसी भी एक जगह से कट कर रहा हूँ तो जिस तरीके के प्रॉपर्टीज़ वहाँ से मिलेंगे, पॉइंट ए पे अगर मैं कट कर रहा हूँ उसको, तो पॉइंट ए पे जिस तरीके से मेरे को मुझे जो है प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे, उसी तरीके से अगर मैं पॉइंट बी पे कहीं कट करता हूँ तो उसी तरीके की प्रॉपर्टीज़ मुझे मिलनी चाहिए जिस तरीके से मुझे पॉइंट ए पर मिले थे। पॉइंट सी पर कट करता हूँ तो मुझे वैसी प्रॉपर्टीज़ मिलनी चाहिए जैसे मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी पर मिले थे। इसको बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर मान लीजिए कि क्या हो रहा है, पॉइंट ए पर कुछ और प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं, मुझे थोड़े से अलग प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं, पॉइंट बी पे थोड़े से अलग प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं और पॉइंट सी पे थोड़े से अलग प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं, देन इन दिस केस वी कैन नॉट कॉल इट एज यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज और यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी और उसको प्रेफर भी नहीं किया जाता है। जिसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है उसको प्रेफर भी नहीं किया जाता है। तो किसको प्रेफर किया जाता है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वालों को प्रेफर किया जाता है। क्यों क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को प्रेफर किया जाता है? बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक मॉलिक्यूल का या एक एटम का दूसरे एटम के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो यूनिफॉर्म रहेगा। अब उसके अंदर 1000 मॉलिक्यूल्स रहने दो या 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स रहने दो या 10 मॉलिक्यूल्स रहने दो, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से जो डिस्टेंस है वो एकदम यूनिफॉर्म रहेगा, एकदम यूनिक रहेगा। सो दैट उसकी वजह से आपको क्या होगा, जो प्रॉपर्टीज भी मिलेंगे ना थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे से उसको कट कर लो, आपको प्रॉपर्टीज भी यूनिफॉर्म मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा उस प्रोडक्ट के अंदर कोई वीक पॉइंट नहीं रहेगा। उस जहाँ पे कहीं प्रॉपर्टी कम होंगे, जहाँ पे थिकनेस कम होगा उसका, जहाँ मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, वहाँ पे ऑब्वियसली उसका क्या ठहरेगा, वीक पॉइंट ठहरेगा। और अगर कहीं पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम ही नहीं हो रहे, यूनिफॉर्मिटी सब मेंटेन कर रहे हैं वो, तो उस केस में क्या होगा कि प्रॉपर्टीज़ कैसे मिलेंगे, बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेंगे, बिल्कुल जो है सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। आप किसी भी पॉइंट से उसको कट कर लो, तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। एंड इट पॉजेसेस द गुड प्रॉपर्टीज़। इसके केमिकल, मैकेनिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज़ कैसे रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। एंड दीज आर डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़, ये ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ हमको चाहिए। अब ये प्रॉपर्टीज़ कौन से मटेरियल्स में हमको मिलते हैं? आमतौर पर मेटल्स में और अलॉयज़ में। ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे मिलते हैं हमको? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाले जो है प्रॉपर्टीज या फिर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हमको किन मटेरियल्स में देखने को मिलेगा? मेटल्स में और अलॉयज में देखने को मिलेगा। यस, तो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, बेसिकली इट इज़ डिवाइडेड इनटू ओनली 2 कैटेगरीज। यहाँ पे अगर हम लोगों ने पहले ऊपर का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कितने कैटेगरीज बताए गए हैं यहाँ पे? क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। ठीक है, अब यहाँ पे अमॉर्फस किसको बोल रहे हैं, क्रिस्टलाइन किसको बोल रहे हैं, समझ में आया आप लोगों को? अगेन थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। अमॉर्फस मीन्स ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर जो उनके आइटम्स रहेंगे या पार्टिकल्स रहेंगे या मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। उनका जो अरेंजमेंट रहेगा बिल्कुल इर्रेगुलर रहेगा, बिखरे हुए रहेंगे। एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो यूनिक रहेगा। वैसा डिस्टेंस ज़रूरी नहीं है कि दूसरे और भी पार्टिकल्स के साथ रहे। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर जो है आपको ओके, तो अभी ये नज़र आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस। हाँ, तो ये बीच वाला जो है इसको छोड़ दो, ठीक है, ये हमको कुछ लेने देना नहीं है उससे। हमको जो डील करना है वो क्रिस्टलाइन से करना है और नॉन अमॉर्फस, या फिर अमॉर्फस का दूसरा नाम है नॉन क्रिस्टलाइन। तो अब ये क्रिस्टलाइन में क्या रहता है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स है, आपके जो आइटम्स है या आपके जो पार्टिकल्स है, आप चाहे इसको किसी भी नाम से बुला लो, तो ये क्या रहेंगे, एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा रहेगा, यूनिक रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अभी मान लीजिए इसको पार्टिकल ए नाम दिया है और इसको पार्टिकल जेड नाम दिया है, तो पार्टिकल ए का बी और सी के साथ जितना डिस्टेंस है, पार्टिकल जेड का एक्स और वाई के साथ भी उतना ही डिस्टेंस है। ठीक है, और आप कहीं पे भी चली जाइए, मान लीजिए इसको हम लोग जो है पी बोल रहे हैं,
तो P का Q और R से उतना ही डिस्टेंस रहेगा जितना A का B और C के साथ था या Z का X और Y के साथ। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है एक पार्टिकल का, एक मॉलिक्यूल का दूसरे पार्टिकल के साथ या दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, वो बिल्कुल कैसा है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म। और इसके जो प्रॉपर्टीज़ भी हमको मिलेंगे ना, इस मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हमको मिलेंगे वो यूनिफॉर्म मिलेंगे। आप चाहे इसको आप कहीं से भी कट कर लो, जहाँ से भी आप कट करेंगे आपको कैसे मिलेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज मिलेंगे, सेम प्रॉपर्टीज मिलेंगे। एंड दीज आर द मोस्ट प्रेफरेबल मटेरियल इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाले जो मटेरियल्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। नाउ कम टू द सेकेंड टाइप विच इज नॉन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। अब नॉन क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ जो डिस्टेंस है वो ज़रूरी नहीं है कि किसी और पार्टिकल्स का भी वैसे ही सेम डिस्टेंस रहे। ओके, एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ जितना डिस्टेंस है ज़रूरी नहीं है कि सेम ही डिस्टेंस और भी कहीं रहे किसी पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है या जो पार्टिकल्स है या जो आइटम्स है वो कैसे बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज्ड नज़र नहीं आ रहे। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको जो प्रॉपर्टीज़ भी मिलते हैं ना वो यूनिक या फिर यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलेंगे। अगर आप इसको हम बीच में से कहीं कट करेंगे, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया से बीच में से कहीं कट करेंगे, तो जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं वहाँ पे आपको अच्छे सुपीरियर प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगे। बट the area where number of particles or number of items are very less, in that case you will get the very poor properties, बहुत weak properties आपको वहाँ पे मिलेंगी। So the amorphous structure is avoided, या फिर non crystalline structure को क्या किया जाता है, ज़्यादातर अवॉइड किया जा सकता है, ये किया जाता है। ठीक है, समझ में आया ये क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन, या फिर क्रिस्टलाइन या फिर अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, या फिर क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन, ये समझ में आया आप लोगों को। ये क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन हो गया आप लोगों को। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेटल्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज फेरस एंड नॉन फेरस। अब फेरस किसको बोलते हैं, नॉन फेरस किसको बोलते हैं, कौन बताएगा? कोई बता सकता है आप लोगों में से? व्हाट इज फेरस एंड व्हाट इज नॉन फेरस? किसको फेरस बोलेंगे हम लोग, किसको नॉन फेरस बोलेंगे? सिंपल सा है सर, जिसमें आयरन क्वांटिटी से ज़्यादा हो उसको फेरस बोलेंगे। ओके, वेरी गुड। और जो नॉन फेरस में सर नेगेटिव या फिर आयरन क्वांटिटी नहीं है उस पे सर नॉन फेरस बोलेंगे। वेरी गुड। सो फेरस किसको बोल रहे हैं हम लोग? ऐसे मेटल्स जिसके अंदर आयरन डोमिनेंट क्वांटिटी में या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, उसको हम लोग फेरस बोलेंगे। अब ये जो है फेरस, ये टर्म आया है लैटिन लैंग्वेज फेरम से। ठीक है, लैटिन में फेरम को मतलब लोहा जो होता है उसको हम लोग फेरम बोला करते थे लैटिन लैंग्वेज में। अब चूंकि इंग्लिश जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस से मिलकर बनी है, जिसके अंदर कुछ ग्रीक वर्ड्स भी है, कुछ लैटिन वर्ड्स भी है। ठीक है, तो ये जो है आयरन वाला जो टर्म है ये लैटिन लैंग्वेज से उन लोगों ने लिया था और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, फेरम को मॉडिफाई किया है फेरस के तौर पर। तो फेरस आयरन का ही दूसरा नाम है, ऐसा बोल सकते हैं। फेरस आयरन का ही दूसरा नाम है। फेरस मतलब क्या है? आयरन। तो फेरस मटेरियल्स किसको बोलेंगे? ऐसे मेटल्स या फिर ऐसे मटेरियल्स जिसके अंदर आयरन डोमिनेंट क्वांटिटी में है या बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेरस मेटल्स। नॉन फेरस मेटल्स किसको बोलेंगे? ऐसे मेटल्स जिसके अंदर आयरन या तो है ही नहीं या अगर है भी तो बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी में, नहीं के बराबर है। उसके रहने नहीं रहने से उसके प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन फेरस मेटल्स। ठीक है, अगेन फेरस आर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन इट। फेरस को क्या किया जा रहा है? दोबारा से हम लोग दो हिस्सों में फिर कैटेगराइज कर रहे हैं उसको। कौन से बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हैं कि उस फेरस के अंदर कितने परसेंट में कार्बन मौजूद है। सो पहला जो टाइप है उसका वो है स्टील, दूसरा जो टाइप है उसका वो है कास्ट आयरन। सो स्टील किसको बोलेंगे? ऐसा फेरस मेटल जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज 0.08% से लेकर 2% के बीच में होता है,
ऐसे फेरस मेटल को हम लोग स्टील के नाम से बुलाएंगे, या उसको ऐसे फेरस मेटल को हम लोग स्टील बोलेंगे। अब आइए सेकंड टाइप के ऊपर, कास्ट आयरन किसको बोलेंगे? ऐसा फेरस मेटल जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज 2% से लेकर 6.67% के बीच में होता है, ऐसे फेरस मेटल को हम लोग कास्ट आयरन बोलेंगे। अगेन स्टील के ढेर सारे टाइप्स हैं और कास्ट आयरन के भी ढेर सारे टाइप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक बताए गए हैं आप लोगों को, ये डिटेल में हमको पढ़ना है, आने वाले चैप्टर्स में जो है हमको इसी के बारे में पढ़ना है। स्टील के ऊपर पर्टिकुलरली आपका पूरा एक चैप्टर दिया गया है, कास्ट आयरन के ऊपर आपका पूरा एक चैप्टर दिया गया है, तो यही हमको आगे पढ़ना है, यही आपका सब्जेक्ट है, इसी के ऊपर हमको फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा बताया गया है आप लोगों को क्लासिफिकेशन क्या है, देखिए इसमें कि स्टील्स आर अगेन कैटेगराइज इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स, लो alloy steel, high alloy steel. Again low alloy steels are categorized into 3 different types, low carbon steels, medium carbon steels, high carbon steels. So this is how steels are defined. अब आते हैं कास्ट आयरन के ऊपर। अगेन कास्ट आयरन जो है उसको कैटेगराइज किया गया है 3 डिफरेंट टाइप्स में, ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, अलॉय कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन को अगेन जो है डक्टाइल कास्ट आयरन के अंदर कैटेगराइज किया गया है, या फिर व्हाइट कास्ट आयरन को जो है अगेन मेलेबल कास्ट आयरन में कैटेगराइज किया गया है। सो दिस इज हाउ फेरस मेटल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज स्टील्स एंड कास्ट आयरन। देन आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, वो है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? अ क्रिस्टल इज डिफाइंड एज orderly array of atoms in space. Crystalline form of solid has periodically repeated arrangement of atoms. Normally metals are made up of number of crystals and each crystal consists of large number of atoms. इसका मतलब क्या है कि आपका जो सॉलिड होता है, जो मेटल है, आमतौर पे क्या है वो सॉलिड स्टेट में है रूम टेम्परेचर के ऊपर। जब वो सॉलिड स्टेट में है तो क्या रहेगा, उसके अंदर नंबर ऑफ क्रिस्टल्स रहेंगे, और ये क्रिस्टल्स कैसे एरे के फॉर्म में होते हैं, ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रिस्टल्स हैं उनका एक स्ट्रक्चर होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज द एटॉमिक अरेंजमेंट इन सॉलिड्स। These are regular geometric positions of atoms in space. These positions are the result of the directional bonding and close packing of atoms. With the minimum energy per unit volume, the crystal structure will have stable arrangement, and then this arrangement can preserve electrical neutrality, minimize strong ion repulsion, satisfy the directionality. अब ये जो है फर्स्ट ईयर से जो लोग आए हैं उन लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनली क्लोजली पैक्ड, है ना, पढ़ा है ना आप लोगों ने, पढ़कर आए ना फर्स्ट ईयर में, पढ़ा है ना अभी सर ने आपको। मॉडल्स भी दिखाए होंगे, येलो कलर के जो है क्यूब्स के अंदर रखे हुए मॉडल्स भी दिखाए होंगे आप लोगों को। सो ये जो भी आपके पास सॉलिड है, जो भी मेटल है आपके पास, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक किसी पर्टिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है एक पर्टिकुलर फॉर्म में होता है। अब वो फॉर्म्स जो है यहाँ पे हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर के तौर पे देखने वाले हैं। अब यहाँ पे जो है आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, और भी होते हैं बट हम लोग यहाँ पे सिर्फ 3 के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। पहला होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC। दूसरा होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, FCC। तीसरा होता है क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल या फिर CPH। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक किसको बोलेंगे हम लोग, या BCC किसको बोलेंगे? जो लोग 12th कर आए हैं वो लोग भी पढ़ कर आए हैं इसको। यस, तो फर्स्ट टाइप जो है हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर का वो है BCC या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ईच कॉर्नर atom is shared by 8 adjoining cubes and the atom in the center cannot be shared by any other cube। इसका मतलब क्या है, आपका ये क्यूब है ना, क्यूब नजर आ रहा है ना आपको, ये क्यूब की तरह दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ,
अब इसके क्यूब के जितने भी कॉर्नर्स हैं ना, ये ऊपर के 4 कॉर्नर और नीचे के 4 कॉर्नर्स, इन 8 कॉर्नर के ऊपर क्या है, यहाँ पे आइटम्स प्लेस किए गए हैं। और ये आइटम्स क्या करते हैं, इसके बाजू का जो दूसरा क्यूब रहेगा उसके साथ बॉन्डिंग बनाएंगे। तो अब वो चाहे राइट साइड में रहो या लेफ्ट साइड में रहो या टॉप साइड में रहो या बॉटम साइड में रहो, जो भी क्यूब है आसपास में मौजूद, ये कॉर्नर वाले 8 आइटम्स क्या करेंगे, अपने अपने एडजॉइनिंग मतलब क्या, बाजू वाले क्यूब के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे। सो इस टाइप का अगर आपके पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है आपको, तो उसको, उस टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, BCC। अब बचा जो ये बीच वाला है, बीच में जो सेंटर में जो है बॉडी सेंटर्ड है ना, नाम दिया हुआ है यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड। अब ये बॉडी हो गई हमारी, उसके सेंटर में एकदम एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो सेंटर में एक यहाँ पे और एक आइटम दिया हुआ। अब ये आइटम जो है किसी के साथ भी बॉन्डिंग नहीं बनाता है, ये एज इट इज रहता है बीच में ऐसे ही आइडल। ओके, so this type of crystal structure is known as BCC or body centered cubic. अब the unit cell of BCC structure contains 8 atoms at the corner multiplied by 1/8, ठीक है। अब नंबर ऑफ आइटम कितने हुए वहाँ पे, 1 हुआ, 1 सेंटर आइटम 1 आइटम, टोटल आइटम्स कितने हुए वहाँ पे, 1 हुए। अब यहाँ पे 1/8 क्यों कर रहे हैं हम लोग उसको, क्योंकि ये जो आइटम है, पर्टिकुलरली ये जो आइटम है, हर एक आइटम क्या कर रहा है, अपने अपने एडजॉइनिंग क्यूब के साथ क्या कर रहा है, वहाँ पे शेयर कर रहा है उसको। तो हर एक क्यूब में एक पूरा आइटम नहीं बचेगा अभी। टोटल क्यूब के अंदर कितने आइटम बचेंगे, 8 आइटम्स एट द कॉर्नर मल्टीप्लाइड बाय 1/8। 1/8 के साथ क्यों हमने उसको डिवाइड किया है, 8 के साथ क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि वो जो 8 कॉर्नर के हमारे आइटम्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने एडजॉइनिंग के साथ वहाँ पे बॉन्डिंग बना रहे हैं। दैट्स वाई वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 1/8। सो यू विल गेट द 1 आइटम। एंड सेंटर में जो है वो एज इट इज है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है अपने आप। यहाँ पे शेयरिंग हो रही है कि इसलिए हमको उसको डिवाइड करना पड़ा। अगर शेयरिंग नहीं होती तो हम इसको डिवाइड नहीं करते। अगर शेयरिंग 4 के साथ होती है तो सिर्फ हम यहाँ पे 1/4 करते। शेयरिंग 5 के साथ होती तो 1/5 करते। शेयरिंग 3 के साथ होती तो 1/3 करते, ठीक है। और शेयरिंग होती ही नहीं तो 8 के 8 यहाँ पे डायरेक्टली आ जाते। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द BCC स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सेंटर वाला देखो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है, इसलिए उसको एज इट इज रखा है, उसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं हुई है, वैल्यू एज इट इज है उसकी, 1 का 1 बराबर है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 के साथ शेयर कर रहा है, इसलिए इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 1/8 के साथ। At crystalline in the BCC structure are chromium, tungsten, alpha iron, delta iron, molybdenum, vanadium and sodium। इस स्ट्रक्चर वाले आपको मेटल्स देखना है तो उसके कुछ एक एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पर, क्रोमियम, टंगस्टन, अल्फा आयरन, डेल्टा आयरन, मोलिब्डेनम, वैनेडियम एंड सोडियम। These are the few examples which contains the BCC molecular structure और BCC crystal structure, ठीक है। देन आते हैं हम हमारे सेकंड टाइप के ऊपर, जो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक किसको बोलेंगे, देयर इज वन एटम in the center of each face of the cube along with the 8 corner atoms. Each face atom touches its nearest corner atom. अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये क्यूब है वापस से वैसे ही क्यूब है जैसा BCC पे था, और सेम उसी तरीके से यहाँ पे उसके जो कॉर्नर्स है उनके 8 कॉर्नर के ऊपर 8 एटम्स यहाँ पे प्लेस है, ठीक है। अब इन 8 एटम्स के अलावा क्या है, हर फेस के ऊपर, अभी फेस किसको बोलेंगे, एक साइड को बोल रहे। जैसा मान लीजिए राइट साइड में ये चारों मिलके एक फेस बना रहे हैं, ये चारों मिलके सामने का फ्रंट साइड बना रहे हैं, ये चारों मिलके जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड बना रहे हैं, ये चारों मिलके आपका जो है बैक साइड बना रहे हैं, ठीक है। ये चारों मिलके क्या कर रहे हैं, आपका टॉप साइड बना रहे हैं, और ये चारों मिलके आपका क्या कर रहे हैं, बॉटम साइड बना रहे हैं, या बॉटम फेस बना रहे हैं। अब ये सारे फेसेस के सेंटर में एक एक आइटम दिया हुआ है। BCC में क्या था, चारों कॉर्नर 8 कॉर्नर के अलावा, 8 ये जो है ना 8 कॉर्नर्स के अलावा सिर्फ सेंटर में एक दिया हुआ था आइटम।
इसलिए उसको हम क्या बोल रहे थे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में क्या हो रहा है, हर फेस के सेंटर में एक दिया हुआ है। अभी फेस किसको बोलते हैं, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हर एक साइड को क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक एक फेस बोल रहे हैं। आ रहा है समझ में, फेस। आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? रिवाइज कर रहा हूँ मैं। जो लोग फर्स्ट ईयर से आए हैं वो पढ़कर आए हैं, जो लोग डायरेक्ट सेकेंडरी से आए हैं वो लोग भी पढ़कर आए हैं ये चीज़ को। मैं बस रिवाइज कर रहा हूँ आप लोगों को, रिकॉल करने में मदद कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर फेस के सेंटर में भी जो है यहाँ पे एक एक आइटम दिया हुआ है। अब इसका कैसे हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स? अगेन ये तो चीज़ कॉमन ही है, जैसा हमने पहले किया था बीसीसी में, वो तो सेम ही है। 8 आइटम्स एट द कॉर्नर मल्टीप्लाइड बाय 1/8, क्योंकि सेम कंडीशन तो वैसी ही है। अभी 8 कॉर्नर्स हैं साइड में, जैसा जो डार्क सर्कल से जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 8 कॉर्नर्स अलग अलग, ठीक है। वो 8 कॉर्नर्स एज इट इज है अपने अपने, और जो कि अपने अपने एडजॉइनिंग क्यूब के साथ उसको शेयर कर रहे हैं। तो वहाँ पे तो कोई चेंज नहीं हुआ है। अभी चेंज हुआ है सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में क्या है, देखो यहाँ पे 6 आइटम्स एट द फेसेस। अब यहाँ पे 6 फेसेस हैं, देखो टोटल, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 और पीछे वाला एक 6। या सिंपल मैं अगर आपको बताना चाहूँगा, राइट साइड वाला एक फेस, लेफ्ट साइड वाला एक फेस, फ्रंट साइड वाला एक फेस, बैक साइड वाला एक फेस, टॉप साइड वाला एक फेस, बॉटम साइड वाला एक फेस। कितने फेस हुए टोटल? 6। अब ये 6 फेसेस के सेंटर के ऊपर क्या है, एक एक आइटम दिया हुआ है। तो 6 आइटम एट द फेसेस मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब ये भी जो है ना, ये भी यूनिक नहीं है, ये भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बॉन्डिंग बना रहे हैं अपने एडजॉइनिंग क्यूब के साथ। आ रही बात समझ में? बीसीसी में क्या था, जो सेंटर में था वो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बना रहा था, वो एज इट इज था अपनी जगह पे, वो किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा था। इसलिए हमको पूरा का पूरा वो कंसिडर किया था, हमने सिंगल कंसिडर किया था उसको। जैसे यहाँ पे सेंटर में जो था वो किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा था, तो एक का एक पूरा हमने कंसिडर किया था। बट फेस सेंटर्ड क्यूबिक के फेसेस के सेंटर में जो आइटम दिया हुआ है वो क्या कर रहा है, अपने एडजॉइनिंग क्यूब के साथ बॉन्डिंग बना रहा है। जिस तरीके से ये कॉर्नर वाले बना रहे थे ना, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी बना रहा है। अभी डिफरेंस क्या है कि ये जो बॉन्डिंग है सिर्फ एक के साथ रहेगी, मतलब एक जो सेंटर रहेगा फेस के ऊपर जो आइटम है वो सिर्फ दूसरे एक के साथ ही उसको शेयर करेगा। तो दैट्स वाई वी हैव मल्टीप्लाइड इट बाय 1/2 और डिवाइडेड बाय 2। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। सो 6 आइटम एट द फेस मल्टीप्लाइड बाय 1/2। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 8 आइटम्स एट द कॉर्नर मल्टीप्लाइड बाय 1/8 इज इक्वल्स टू 1 आइटम। 6 आइटम एट द फेस मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल्स टू 3 आइटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए फेस सेंटर्ड क्यूबिक के कंडीशन में? 4 आइटम्स। Total 4 items indicate that FCC structure is more densely packed than the BCC structure। अभी यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जो आइटम्स है जो बॉन्डिंग कर रहे हैं अपने एडजेसेंट क्यूब के साथ, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक में ज़्यादा है या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में ज़्यादा है? यस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में। वेरी गुड। और जितने नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ेंगे या फिर जितने नंबर ऑफ आइटम्स बॉन्डिंग बनाएंगे अपने एडजेसेंट क्यूब के साथ, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ रहेगी वो ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी? ज़्यादा रहेगी। वेरी गुड। जितने ज़्यादा आइटम्स जो हैं अपने एडजेसेंट क्यूब के साथ बॉन्डिंग बनाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, या फिर उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा उतना ही क्लोजली पैक्ड रहेगा। क्लोजली पैक्ड में किसको बोलेंगे हम लोग, या डेंसली पैक्ड किसको बोलेंगे हम लोग? जिसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जिसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है हम लोग उसको समझ सकते हैं। नाउ the examples of metals that crystalline in the FCC structure are aluminum, nickel, copper, gold, silver, lead, platinum and gamma iron। तो ऐसे मेटल्स जिनके अंदर आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक का क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, वो कौन से आयरन हैं? एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लीड, प्लैटिनम एंड गैमा आयरन। तो इन मेटल्स में आपको FCC वाला स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। देन आते हैं हमारे थर्ड टाइप के ऊपर। यूजुअली द हेक्सागोनली क्लोज्ड पैक्ड लैटिस शोज 2 basal planes in the form of regular hexagons with an atom at each corner of the hexagon and 1 atom at the center. In addition to this, there are 3 atoms in the form of triangle midway between the 2 basal planes. It may not be readily apparent from the unit cell why the structure is called hexagonal. If a number of these unit cells are packed together with the axes parallel to one another,
as in space lattice, a hexagonal prism may be carved out of them. Since each atom at corner of the unit cell is shared by 8 adjoining cells and one atom inside the cell cannot be shared, hence it has total 2 atoms. If 3 cells are considered, then it has total 6 atoms. अभी देखो यहाँ पे जो है हेक्सागन, हेक्सागन किसको बोलते हैं? हेक्सा में किसको बोलेंगे हम लोग? 6 को बोलेंगे, 6 को बोलेंगे। अब जैसा पेंटा होता है, पेंटा किसको बोलते हैं हम लोग? 5 को बोलते हैं, 5। हाँ। तो इसी तरीके से यहाँ पे हेक्सा किसको बोलेंगे? यहाँ पे 6 साइड्स हैं, 6 डिफरेंट साइड्स आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो हेक्सागोनल प्रिज्म के तौर पे नज़र आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि 6 जो है आपके आइटम्स रहेंगे वो ऊपर की साइड में रहेंगे, 6 आइटम्स जो है आपके नीचे की साइड में रहेंगे, या फिर एक हेक्सागोन टॉप साइड में रहेगा और एक हेक्सागोन बॉटम साइड में रहेगा। और इन दोनों हेक्सागोन्स के बीच में एक ट्रायंगल शेप का भी आपको जो है स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे आइटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। आइटम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है कि टॉप साइड में 6 आइटम्स, 6 साइड्स रहेंगे आपके, हेक्सागोनल शेप मिलेगा। बॉटम साइड में हेक्सागोनल शेप मिलेगा जिसके हर कॉर्नर के ऊपर जो है आपको आइटम्स देखने को मिलेंगे। और उसका जो दोनों हेक्सागोन्स के सेंटर है, बीच में जो है मिड पॉइंट में आपको एक ट्रायंगल शेप का भी आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसके कॉर्नर्स पर भी आइटम्स रहेंगे। इसी वजह से जो है इसको हेक्सागोनली क्लोज पैक कहा जा रहा है। और यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स भी बढ़ रहे हैं अभी। तो यहाँ पे आप नोटिस करो, हेक्सागोनल के हर साइड के ऊपर, हर कॉर्नर के ऊपर जो है आपको आइटम्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ऊपर साइड में भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 8 जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। देन नीचे भी देखो आपको 8 देखने को मिलेंगे। बीच में देखो अभी आपको यहाँ पे 3 देखने को मिलेंगे। सो द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स दैट क्रिस्टलाइज इन द स्ट्रक्चर आर मैग्नीशियम, बेरिलियम, जिंक, कैडमियम एंड हैफनियम। तो किन स्ट्रक्चर्स में या किन मेटल्स में हमको हेक्सागोनली क्लोज पैक या फिर HCP स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है? वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, हैफनियम वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? N = NC/8 + NF/2 + NIN/1। तो इस तरीके से जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है। आमतौर पे ये HCP जो है बहुत कम मेटल्स में मिलता है हमको। ज़्यादातर हमको जो डील करना है वो BCC और HCC के साथ ही करना है। देन आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, वो है यूनिट सेल एंड स्पेस लैटिस। So what is unit cell? The atomic order in crystalline solids indicate that small groups of atoms forms a repetitive pattern. Thus, in describing crystal structure, it is often convenient to subdivide the structure into small repeat entities called unit cells. The smallest component of the lattice structure is known as unit cell. अब यूनिट सेल किसको बोलेंगे? सबसे छोटा हिस्सा हमने क्या किया है, उसमें से कट करके निकाला है। ठीक है, ये आपका क्या है? स्पेस लैटिस है। ठीक है, इसके अंदर पूरे जो है आपके अभी जो हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा था ना, और वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं तो लाई करेंगे, तो वो उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्पेस लैटिस। ये आपका क्या है? पूरा स्पेस लैटिस है। इसके अंदर हर जो भी टाइप का आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसके स्ट्रक्चर को। तब यहाँ पे क्यूब्स आपको नजर आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्यूब्स नजर आ रहे हैं आपको। एक क्यूब दूसरे क्यूब के साथ इंटरलिंक्ड है, ये भी नजर आ रहा है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल पूरा स्पेस लैटिस। अब स्पेस लैटिस में हमको क्या करना है? एक सिंगल यूनिट का हमको स्टडी करना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिट सेल। बस एक सिंगल का, एक के बारे में हमको स्टडी कर रहे हैं आप लोग, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिट सेल। तो यहाँ पे बताया गया concept of packing efficiency. The reason crystals form this attraction between the atoms because they attract one another. It is often favorable to have many neighbors. Thus, the coordination number or number of adjacent atoms is important. अब जैसा मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था कि मेटल की डेफिनेशन क्या है? The materials which share their electrons easily for making the bondings are called as metals. अब ये बॉन्डिंग जब क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे चेन बनेगी, स्पेस लैटिस जैसा स्ट्रक्चर बनेगा वहाँ पर, है ना? इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे नज़र आएगा।
और जब इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इसका मतलब क्या होगा कि एक आइटम दूसरे आइटम के साथ शेयर होगा। ठीक है, अब यही जो है यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब एक आइटम दूसरे आइटम के साथ जो है शेयर होगा तो उसके बीच में क्या होगा, बॉन्डिंग बनेगी। और जितना ज़्यादा वो शेयरिंग होगी, जितने ज़्यादा अपने एडजस्टिंग जो है क्यूब्स के साथ उसकी शेयरिंग होगी, उतने ही ज़्यादा क्या होगा वहाँ पर आपको पैकिंग एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। और जितनी ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी, उतनी ज़्यादा अच्छे प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल सकते हैं। सो द पैकिंग एफिशिएंसी इज द फ्रैक्शन ऑफ द क्रिस्टल्स or unit cells actually occupied by the atoms. It must always be less than 100% because it is impossible to pack atoms without having some empty space between them. तो पैकिंग एफिशिएंसी हमको चाहिए तो सही, बट 100% नहीं मिल पाती है हमको। वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है कुछ एक जगह एम्प्टी छूट जाती है। मगर अगर पैकिंग एफिशिएंसी 100% अगर रहेगी तो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है वो, हमारे लिए अच्छा ही है वो। सो द पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस filled by the particles. It is also called as atomic packing factor. इसका एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होल मल्टीप्लाइड बाय 100. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पैकिंग एफिशिएंसी. अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया गया है पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए. एक क्यूब दिया हुआ है, उसके अंदर जो साइड है उसकी लेंथ दी गई है a. ठीक है, सारे जो साइड से उसका जो लेंथ है उसकी a ही है, जो डिस्टेंस है वो a ही है. और यहाँ पे जो है r से रिप्रेजेंट किया गया है मॉलिक्यूल्स को. इस तरीके से यहाँ पे इसकी शेयरिंग, अभी देखो यहाँ पे हम लोग बोल रहे थे ना कॉर्नर में एक आइटम है वो जो अपने एडजेसेंट के साथ शेयर हो रहा है, तो 1/8 किया था हम लोगों ने. तो अभी देखो यहाँ पे 1/8 ही आया है उसका. सेंटर में जो है वो यूनिक है, वो किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा है. तो यहाँ पे 2r से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगेन यहाँ पे r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इस तरीके से जो है आप लोग पैकिंग एफिशिएंसी पता कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? यस. ओके, सो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे आज.